1 minute, he will with us. Okay. Thank you so much. God bless you, dear sir. आई एम वेरी ग्लैड। जब मैंने आपको बोला आपने एक्सेप्ट किया, और मैंने सोचा कि आज लाइव जो होगा तो कौन जो हमारे प्रचार को सुनेगा, तो उसको जरूरी है कि सभी लोग समझें और देश विदेश के लोग भी हमारे वचन को समझें और परमेश्वर की वचन अनेक अनेक जगह को फैले। तो आज का जो वचन था बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा के उपस्थिति में कैसे बने और कैसे प्राप्त करें। Today I am going to speak on the topic of the how to receive Holy Spirit, and especially I thought that it is good to share the word in English and Hindi so that everyone sitting over the outside, also outside of India, can understand the word of the Lord and may implement in their life. Yes. तो आज हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहली बात है, अगर हम बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कैसे प्राप्त करें। अगर हम सबसे पहले की बात मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार मैं अपने पापों के लिए परमेश्वर से डेली क्षमा मांगे। First of all, how to receive the Holy Spirit in our life, and also how to walk in the faith. So we have to do, first of all, that we have to seek the forgiveness before the Lord. तो हम लोग एक बाइबल से वचन को पढ़ेंगे। तो सुनील भाई, मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो प्लीज हमारे साथ अगुवाई करें आज के वचन को पढ़ने में। पहला यूहन्ना की किताब और उसका 1:8 पर। First John book. Today we are going to read a scripture from First John chapter. Vishwasbhai, chapter 1 8 पर पहला अध्याय 1 पर। Chapter 1 verse 8. या 1 का 8 ना? यस, First John, yes, 1 का 8. First chapter 1 book of First John chapter 1 verse 8. यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यस, परमेश्वर के वचन बोलता है यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा देते हैं। The word of the Lord says that if there is no sin in us, then we are deceiving the Lord. और हम में सत्य नहीं है, हम में सत्य, and there is no truth in our life. तो मैंने पहले वचन चुना है आपके लिए कि पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हम कैसे अपने आप को बनाए। तो यहाँ पर हमने सीख रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को, अपने पापों को माने, अंगीकार करें। First of all, like I was sharing that before, that how to receive Holy Spirit. So first, in order to receive the Holy Spirit in your life, so first of all we have to seek forgiveness before the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. हमें परमेश्वर के उपस्थिति चाहिए। परमेश्वर होली है और वो होली जगह पर रहना चाहता है, वो पवित्र है। अगर आप अपने आप को पवित्र करते हैं तो परमेश्वर आपको पास आकर रहना चाहेंगे। We have to know, we have to learn that the Lord God is always holy. So if we want to also stay in the near to the Lord, so we have to also be holy in the presence of the Lord. इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम अपने आप को माने, हम अपने आप को बोले कि यस गॉड, मैं सच में परमेश्वर मैंने ये गलती किया है। परमेश्वर अपने आप को हम्बल्स परमेश्वर के सामने दे ताकि आपकी पवित्रता सब परमेश्वर को दिखाई दे और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आपको एहसास हो, महसूस हो। For that you have to sit in the presence of the Lord and you have to ask
You have to say that, yes, Lord, I have done wrong. I have done the mistake before the Lord. And we have to admit our mistake before the Lord, that God, you are holy, but we have done the wrong things before the Lord. प्रेज गॉड, यस। और दूसरी बात हम इसमें सीखेंगे कि विश्वास करें, अपने अंदर विश्वास करें। Secondly, you have to believe, you have to have the faith in your personal life. हाँ, हमें अपने लाइफ में विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और जिंदा है, जी उठे। You have to learn, you have to have the faith, you have to believe that, yes, the Lord Jesus Christ has been sacrificed for our sins and died for our sins. अगर हम Yes. प्रभु को विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा का उपस्थिति को हम अपने अंदर एहसास करते हैं। When we admit ourselves, when we believe that, yes, the Lord is God and He is the Lord and He sacrificed for our sins, then we receive Him in our life. प्रेज गॉड, यस, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. इसके लिए हम इसको समझने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे, आप हमारे साथ निकाल लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की किताब 7 अध्याय 37 पद से लेकर पढ़ेंगे आप। We will read the scripture from book of John, chapter 7, verse 35 onwards, right? 37 to 39, yes। Okay, 37 to 39. सुनिए, एक बार रिपीट करिए, क्या बोला आपने? यूहन्ना का कौन सा? मत्ती 7 का 37 और 39। आपका 37 और Matthias, John, यूहन्ना या मत्थयू? यूहन्ना। नहीं, मत्ती। अच्छा, Matthew. We will read a scripture from book of Matthew, Gospel of Matthew, chapter 7, verses 37 to 39. Matthew chapter 7, 37 to 39. Yes। मत्ती में 7, मत्ती Yes, Matthew. मत्ती में 7 में आई थिंक इसमें 29 लास्ट है। ओके, सॉरी, मत्ती में यूहन्ना है, यूहन्ना 7। I told no, John. Ioanna first only you told. उसके बगल में मेरे मत्ती लिखा है तो मैं वो बोल दिया आपको। यूहन्ना 7 Book of John, chapter 7, verses 37 to 39. Praise God. Hallelujah. Sorry for the mistake. 37 and 38 ना? 37 to 39. हाँ, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। आगे पढ़ो और थोड़ा सा। निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। Praise Lord। इसमें लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि जो उस पर विश्वास करेंगे, जीवन की नदियां उसके अंदर से निकल जाएगी। Here it is written that whoever believes in the Lord, the river of life will flow from them, flow from him or them. और उसके 39 में हम लोग पढ़ रहे थे तो लिखा है कि ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। Here also we read in the verse 39 about the Spirit, about the Holy Spirit. तो अगर हम अपने जीवन में
जीवन की नदी देखना चाहते हैं, आशीष का स्रोता देखना चाहते हैं, तो लिखा है 39 में कि हमें उस पवित्र आत्मा के उपस्थिति को अपने ऊपर लेना है। If you want to receive the liver of life in your life, then you have to receive the Holy Spirit. You have to believe in the Holy Spirit. जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके अनेक बंधन टूटेंगे, आपके अनेक काम पूरे हो जाएंगे, सक्सेस होंगे, और परमेश्वर अनेक प्रकार के आशीष देगा। और नदी जो है, लिखा हुआ कि आपके जीवन नदी की तरह, मैंने पानी जो है कितनी बड़ी आशीष की तरह आपके जीवन को परमेश्वर ले जाएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे सबके ऊपर आएगा। तो When you believe in the Lord, then when you believe also in the Holy Spirit, then you will receive the different blessings in your life. Like there will be also river of life in your life. There will be different types of blessings you will receive from the Lord. इसीलिए डियर, पवित्र आत्मा को हम उपस्थिति अपने लाइफ में कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अपने आप को माने, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए। जब हम अपने गलती को मानते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में वास करना चाहता है। अगर गलती को नहीं मानते हैं, पाप को परमेश्वर के सामने नहीं मानते हैं, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करना में, उपस्थिति में होना और कठिन है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। That is the reason that if you want to receive the blessing of the Lord, first of all, you have to seek forgiveness before the Lord. If you seek forgiveness, if you ask forgiveness before the Lord, then the Holy Spirit will come and will bless you. But if you do not believe in the Lord, then you will not receive the blessing from the Lord. And you have to, if you admit your before the Lord, then only the blessing you will receive. If you do not admit before the Lord, before the Holy Spirit, if you do not receive him, do not accept him, then you will not see the blessings of the Lord. Praise Lord, yes, glory to God. आइए एक और वचन को पढ़ेंगे। प्रार्थना के समय, जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, जब आप पर्सनल प्रार्थना करने जाते हैं, चाहे कभी भी प्रार्थना में बैठते हैं, आप अपने आप को नम्र बनाकर जरूर फॉरगिवनेस के बात प्रभु से करें। इसके लिए हम पढ़ेंगे। When you sit in the presence of the Lord for the prayer, for your personal prayer, then you speak before the Lord. You talk with the Lord in your personal life, personal prayer life. इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह की किताब पढ़ो, यशायाह। We will read for that one book of one portion taken from book of Isaiah. 59, 59 का 2. Isaiah 59 verse 2. परंतु Isaiah 59 verse 2. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। Amen. परंतु तुम्हारे अधर्म के कारण, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कारण परमेश्वर क्या है तुमसे, फिर से पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बस हाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से हमें क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को लेकर आया कि हमें फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अधर्म के काम जो है हमारे लाइफ में, जो काम होती है परमेश्वर के विरोध, कुछ ऐसे अधर्म की काम है, वो परमेश्वर से हमें अलग करता है, परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए हमें फॉरगिवनेस की जरूरत है, हमें डेली फॉरगिवनेस की जरूरत है। We need to receive forgiveness from the Lord every day, because our sins, because our unrighteousness, it makes us away from the Lord, and it also separates us from the Lord God because of our sins. So that is what we have to ask forgiveness before the Lord every day, every night, every moment. We have to pray for the forgiveness to the Lord.
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है अपनी अपनी सामर्थ को, अपनी आत्मा को आपके ऊपर, हम सब के ऊपर प्रकट करेगा। प्रेज गॉड। Amen. So that's what. So then, if we receive, if we ask the forgiveness before the Lord, then God will bless you in every area. If we ask the forgiveness before the Lord, then only God will put the Holy Spirit in your life, and you will receive the blessings from Him. पवित्र आत्मा को लाने के लिए आपको प्रार्थना भी करना है। हम सबको पवित्र आत्मा को मांगने के लिए हमें पवित्र आत्मा को प्रार्थना से मांगना भी है। यस, To bring Holy Spirit in your life, so you have to seek before the Lord. You have to ask before the Lord. If you want to receive the Holy Spirit in your life, you have to pray. You have to pray to God that God, please give me Holy Spirit. आइए वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 11। We will read a scripture from the book of Psalm, chapter 51, verses 1. Psalm 51, verse 1. Right? 11, verse 11. Yeah. Sorry, मुझे 51, अपने Psalm 51, verse 11. मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। बस मुझे अपने सामने से निकाल न दे और पवित्र आत्मा को मेरे से अलग न कर। परमेश्वर के वचन बोलता है। The word of the Lord says that please do not separate me from in front of the God, and do not separate the Holy Spirit from me. यस, इसीलिए परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं, आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से जरूर है कि पवित्र आत्मा को मांगे, परमेश्वर की आत्मा को मांगे। That's what when you come to before the Lord, so it is important that you pray to God that please Lord you accept me. When you come, when you sit in the presence of the Lord, that you admit yourself before Him. और कभी कभी सवाल आता है कि जो बाइबल बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन हम लोगों ने मुंह से अंगीकार किया और उसको एक्सेप्ट किया, उसी दिन हमने परमेश्वर के आत्मा को ले पा लिया। डियर्स, जिस दिन हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, एक्सेप्ट किए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। Is sometimes we pray, sometimes it is known that when we have received when we have admitted that yes Lord you are our savior, yes Lord you are you are the one who forgives us our sins, so that day we receive the Holy Spirit. It is being said to everywhere. तो यीशु मसीह के चेले लोग जो थे वो भी यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को दूंगा और पवित्र आत्मा को तुम्हें पाने के लिए तुम्हें एक मन होकर, एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। Lord Jesus also told his disciples that I will give you Holy Spirit, but to receive the Holy Spirit, you all have to sit together and you all have to pray in one spirit, one mind. यस, और परमेश्वर की तब जाकर परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरा। And then only the Holy Spirit came upon them. और परमेश्वर की जब आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा से भर गए, उनके जीवन में महान महान काम हुए, अद्भुत अद्भुत चमत्कार हुए। So when the Holy Spirit came upon them, so they have received the power and also they have done a lot of miracles. और उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। मेरी डियर, यही है पवित्र आत्मा का पहचान जो हमको आगे बढ़ाता है। Then only we see that how they have done the wonderful works and they have received the blessings. So that is the recognition of the Holy Spirit, that you will be fruitful, you will be doing the great work for the Lord. That is the recognition of the Holy Spirit. यस, जब पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे उपस्थिति में आ जाएगा तो हमारे सारे जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से सामर्थ मिलेगा, अद्भुत काम होंगे,
और अनेक कामों में पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, इसीलिए वो हमें दिया गया है। Holy Spirit has been given to us so that we may receive the power from the Lord, and we may do the great things for the Lord, and also we may do the miracles, do the lot of things for the Lord. That is the reason Holy Spirit has been given to us. तो मैंने आप सब लोग को आज थोड़ी सी वचन लेकर आया, समझाया कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा को रिसीव करने से पहले हमें अपने लाइफ में क्या क्या बदलाव की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करके अपनी आत्मा को दे, अपने पवित्र आत्मा को दे, अपनी उपस्थिति। That's what today I have received. I have spoken from the Lord, from the word of the Lord to you, that to receive the Holy Spirit, how you have to prepare yourself, how you can receive the Holy Spirit in your life. That's what I want to like to speak on from the word of the Lord. और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आज वचन के द्वारा हम सभी लोगों ने इन बातों को सीखा है, और आगे आने वाले दिन में हम कुछ और विषय पर चर्चा और बातें करेंगे। And we will be talking about the Holy Spirit in future in different things, different ways. तो मैं यहाँ पर अभी अपने आप को विराम करता हूँ। प्रभु आप सब लोग को आशीष दे। आइए हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। So here I want to stop and I want to pray for you all. So आइए हम लोग सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, जितने लोग लाइव में हैं, लाइव देख रहे हैं, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करें। आज एक हमने वचन सीखा है। I am going to pray for everyone, those who are being online and those who are with us in the Zoom. So I am going to pray for each and everyone. आपने वचन से सुना है कि पवित्र आत्मा जो आप हमारे लाइफ में आएगा तो बदलाव होगा। आज पवित्र आत्मा वो काम करेगा, आप जहां से भी देख रहे हैं लाइव को, आपके लाइफ में चमत्कार करेगा। You heard that how the Holy Spirit works in our life. So wherever from you are hearing the Lord, word of the Lord, you will receive the blessings. You will receive the wonderful blessings from the Lord. हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं एक साथ। हालेलुया। I am going to pray for you all together once at a time. हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु। आज हम पूरे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Lord. I pray for every brother and sisters at this time. सबको आशीष करो, सबको ब्लेस करे पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। You bless each and every one. और परमेश्वर सभी की प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते लॉर्ड। You listen to each and everyone prayer, oh God. जो प्रार्थना के नीड्स में है, जो भाई बहन, अभी कुछ लोग भाई बहन समस्या में है, बीमारी में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Those who are in problems, I also pray for them. प्रभु इनको हीलिंग करो, परमेश्वर, और इनको आशीष करो प्रभु यीशु। हालेलुया। Lord, you touch and heal them, those who are in the problems. परमेश्वर लाइव में, परमेश्वर जो भी परमेश्वर जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, प्रभु इनके समस्या, प्रभु इनके साथ में रहना, हम आपसे दुआ करते हैं, इनको हीलिंग देना मैं प्रार्थना करता हूं यीशु। हालेलुया। Those who are in the life, if they are also facing any challenges, any problems, I pray in the name of Jesus that they be healed in the name of Jesus Christ. परमेश्वर आने वाला दिनों में प्रभु यीशु और लोगों को ब्लेस करना, बहुत सारे लोग तकलीफ में, बीमारी में, उनको हीलिंग करना, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। I pray for each and everyone, everywhere, those who are in the problems. I pray for them that Lord, you touch them and you heal them. If any problems are coming, everything, Lord, I pray that Lord, you touch them and heal them, everyone. कुछ भाई बहन जो लाइव देख रहे हैं, और परमेश्वर की आत्मा उनके लिए बोल रहा है, कुछ भाई बहन को बहुत दिनों से बहुत बेचैनी है, उनको नींद नहीं आ रहा, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। There are brothers and sisters that Lord speaks to me that they are in the problems, they are in the distress, they are not able to sleep properly. I pray for them.
कुछ भाई बहन के लिए मैं पवित्र आत्मा हमें बता रहा है कि परमेश्वर हालेलुया उन्हें पीस चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit speaks to me that there are people, there are brothers and sisters, they need a peace from the Lord. So I pray for them. परमेश्वर जितने लाइव देख रहे हैं, जितने हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु सबको आशीष दे परमेश्वर। I pray for each and everyone, those who are in live, those who are online, those who are also in the group. I pray for each and every one of them. प्रभु मैं बहन एक बहन थी, परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु यीशु परमेश्वर उसको भी प्रभु आशीष दे परमेश्वर। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते, उसकी प्रार्थना को सुने, आंसर करे, हम आपसे दुआ करते हैं। Lord, I pray for the sister who was with us. So I pray for her that Lord, you hear her prayer, whatever she speaks to you. मैं प्रार्थना करता हूँ एक और कोई लोग जो लाइव देख रहा है, वो बहुत दिनों से बेचैन है, बहुत दिनों से बेचैनी में है, समस्याओं में है। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु इनको परमेश्वर शांति दो और यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाए। हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। I pray for the brothers and sisters that those who are in the problems, in the distress from a long time, I pray that the Lord would break the chain of the bondage and give them peace and joy and forgiveness. लाइव में देखने वाले एक बहन है, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, उनको भी प्रभु आशीष करो। The sisters online, listening to us on live, I pray for her also. एक ब्रदर है, वो हमारे लाइव को देख रहे हैं, ऑनलाइन को प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु उनको भी आशीष करे। I pray for the brother who is online also, who is listening to us in live. I pray for him also. प्रभु हम सबको आशीष करिए। I pray that Lord you bless each and every one. और धन्यवाद के साथ प्रार्थना। I pray in the name of Lord I pray all this prayer with thanks and giving thanks in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम मांगते, आमीन। Amen. आमीन।